FM دنیا نیوز ہیڈ لائنز کے لیے تعاون کیا ہے سنسلک نے۔ ہیلو ہیئر پلے، نیو سنسلک ہیئر فال سولوشن۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور میں ہوں اقرا شہزاد۔ نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈ لائنز پر۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، قومیہ برادران پہلی گیند پہ وکٹ اڑ جانی ہے، شیر کو بول رہے۔ سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آنے لگی، عمران خان کا قافلہ رواں دواں، نواز لیگ کے جلسوں میں جوش و خروش، MQM بھی میدان میں آ گئی۔ اقتدار کی خواہش نہیں، عوام کا مفاد عزیز ہے، نواز شریف کی یقین دہانی، پرویز مشرف کو قومی مجرم قرار دے دیا، شہباز شریف کہتے ہیں 11 مئی کو فتح نواز لیگ کا مقدر ہوگی۔ پاک پتن، لودھرا اور وہاڑی میں تحریک انصاف کی سیاسی قوت کا مظاہرہ، عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آزاد کرائیں گے، 3 ماہ بعد اقتدار نچلی سطح پر منتقل کر دیں گے۔ الزامات کا جواب دینے کے لیے صدر زرداری کو سیاسی سرگرمیوں کا حق دیا جائے، پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن اور عبوری حکومت سے مطالبہ، کوئی نگران حکومت کو طول دینا چاہتا ہے، امین فہیم کا خدشہ۔ ہر پاکستانی کے لیے ووٹ ڈالنا شرعی طور پر لازمی ہے، خواتین کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکنا بنیادی حق سے محروم کرنا ہے، پاکستان علماء کونسل کا فتویٰ۔ کوئی شک میں نہ رہے، انتخابات وقت پر ہوں گے، فوج صوبوں کی مشاورت سے تعینات کی جائے گی، الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا 11 سے 13 مئی تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ بے نظیر قتل کیس میں FIA نے پرویز مشرف کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا، کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوہری شہریت اور جعلی ڈگریوں نے پیچھا نہ چھوڑا، نواز لیگ کے سابق ارکان اسمبلی زاہد اقبال 15 ماہ اور راؤ مظہر حیات 2 سال کے لیے جیل چلے گئے۔ کوئٹہ میں ہر طرف سیاسی گہما گہمی، گلی محلے پارٹی پرچموں اور بینر سے سج گئے، انتخابی ضابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی۔ اور سال کا پہلا اور صدی کا تیسرا مختصر ترین چاند گرہن آج پاکستان سمیت مختلف ممالک میں دکھائی دے گا۔ السلام علیکم، دنیا ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، میں ہوں طارق متین۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جلسوں کی بہار، وعدوں کی بھرمار۔ جینا ہے ابھی، پینا ہے ابھی۔ بات کریں الیکشن ان ایکشن کی، عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آنے لگی ہے، جہاں عمران خان کا قافلہ رواں دواں ہے، وہیں میاں نواز شریف اور ان کی جماعت نواز لیگ کے جلسوں میں جوش و خروش میں اضافہ ہو رہا ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھی میدان میں آ گئی ہے۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، قومیہ برادران پہلی گیند پہ وکٹ اڑ جانی ہے، شیر کو بول رہے۔ ملک میں انتخابی مہم کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، کہیں جلسے جاری ہیں تو کہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ نواز لیگ، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی، MQM، ANP اور دیگر سیاسی جماعتیں ابھی تک بھرپور ایکشن میں دکھائی نہیں دے رہی۔ تحریک انصاف شہر شہر جلسے کر رہی ہے، عمران خان نے پاک پتن، لودھرا اور وہاڑی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا، مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب میں پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ نواز شریف پہنچے بہاولپور تو شہباز شریف نے بھی جنگ میں مورچہ سنبھالا، قائدین کی جانب سے برسر اقتدار آ کر عوامی مسائل حل کرنے کے دعوے جاری ہیں۔ الیکشن کی خبریں وقت ضائع نہیں کرتے، الیکشن کی دنیا میں آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ جواد احمد صدیقی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جواد، اب ذرا فل تھروٹل پر ہے معاملہ،
جی ہاں طارق، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ہی کہا کہ جلسوں کی بہار اور وعدوں کی بھرمار، تو اسی حوالے سے ناظرین کو ہم آگاہ کریں گے۔ آج ایک جلسہ ہوا جس سے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے خطاب کیا اور انہوں نے بات کی سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا آج وہی کچھ بھگت رہے ہیں، اور جب موجودہ صدر کا انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ صدر زرداری نے عوام کو لوڈ شیڈنگ، جہالت اور غربت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں بھی اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ میاں نواز شریف نے بہاولپور کی تحصیل یزمان میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا ہے کہ انہیں جھوٹے ہائی جیک مقدمے میں ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور ملک سے دور رکھا گیا۔ مشرف سے ذاتی دشمنی نہیں، انہیں معاف کر دیا۔ میرے اوپر بھی ہائی جیکنگ کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ جس نے میرے ساتھ جو یہ سلوک کیا ہے آج اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مشرف صاحب، میرا تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اگر تھی تو میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ایٹمی ملک میں 20 گھنٹے بجلی نہیں ملتی۔ صدر زرداری نے عوام کو لوڈ شیڈنگ، جہالت اور غربت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ہمارا ایٹمی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور 20 گھنٹے یہاں بجلی جا رہی ہے۔ کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایٹمی ملک ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جہاں 20 گھنٹے بجلی جائے نہ کاروبار چل سکتا ہے، نہ ٹیوب ویل چل سکتا ہے، نہ انسان کا کارخانہ چل سکتا ہے، نہ زراعت چل سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ برسر اقتدار آ کر کرپشن اور ذاتی مفاد سے پاک حکومت قائم کی جائے گی۔ ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے اور سبز ہلالی پرچم کی عزت کرائیں گے۔ حکومت بنائیں گے، اللہ کے فضل سے تو ہم کسی قسم کی کرپشن نہیں کریں گے، ہم ذاتی مفاد نہیں ہوگا، ہم ذاتی مفاد والے بندے نہیں ہیں، ہمیں قومی مفاد عزیز ہے۔ آپ لوگوں کا مفاد عزیز ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ہم آپ کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نوجوانوں اور کسانوں کی تقدیر بدلے گی۔ انہوں نے یزمان میں سوئی گیس کی فراہمی کا بھی وعدہ کیا۔ تو انتخابی مہم اب زوروں پر ہے اور انتخابی مہم کا لازمی حصہ ہے جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کو ہدف تنقید بنانا اور ملک کو مثالی بنانے کے وعدے اور دعوے کرنا۔ بہرحال سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ انتخابی مہم کے دوران سابقہ حکومت پر تنقید، حریفوں کی خامیاں اچھالنا اور اپنی کامیابی کو عوامی کامیابی کا دعوت و روایت بن چکی ہے۔ جنگ میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف صدر آصف علی زرداری اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنا نشانہ بناتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تیر اور بلہ مل گئے ہیں اور ان کی جماعت کا ووٹ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آج تیر اور بلہ اکٹھے مل گئے ہیں۔ زرداری نے اندھیرے قائم کیے، بلے باز اس کا ساتھ دے کر نواز شریف کا ووٹ کاٹنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن دوبارہ ملک جوڑنے کا الیکشن ہے اور پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ یہ الیکشن پاکستان کی بقا کا الیکشن ہے۔ آج الیکشن کوئی حکومت کو گھر بچوانے اور نئی حکومت کو لانے کا الیکشن نہیں ہے، یہ پاکستان کو دوبارہ جوڑنے کا الیکشن ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سابق حکمران 5 سال قومی دولت لوٹتے رہے۔ رینٹل پاور منصوبوں میں اربوں روپے ہڑپ کیے گئے۔ انہوں نے 2 سال میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ 11 مئی کو اللہ کا نام لے کر فجر کی نماز پڑھ کر شیر کو بول لگائے، نواز شریف کو کامیاب کرائے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ 2 سال میں بجلی کے پھیرے کرنا چاہیے۔ تمہارا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کوششوں کے باوجود ان کے خلاف کسی قسم کی کرپشن ثابت نہیں کی جا سکی۔ ادھر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پرانی جماعتیں نئی نسل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ صدر زرداری سے حلف نہیں لیں گے۔ میاں نواز شریف اور زرداری بھائی بھائی ہیں اور 11 مئی کو تحریک انصاف کی ہی جیت ہوگی۔
तहरीक इंसाफ का सुनामी वस्ती और जनूबी पंजाब में भी पहुंच गया है। पाकपतन में जलसा आम से खिताब में इमरान खान का कहना था कि शरीफ बरादरान जाली सर्वे कराते रहें, अवाम फैसला दे चुके हैं। नवाज शरीफ मनाजरे से क्यों डरते हैं? 5 बारियां ले चुके हैं, अब छठी में क्या करेंगे? मैं नवाज शरीफ बार बार दावत दे रहा हूं तुम्हें मुनाजरे की, क्यों डर रहे हो? आपको पता है कि जो पहला ही मैंने गेंद करनी है, पहली गेंद पे विकेट उड़ जानी है। जब मैं ये पूछूंगा कि मियां साहब 5 बारियां लेके आप छठी बारी में क्या करोगे? ये जाली सर्वे करवाते रहो, लोग फैसला कर बैठे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि पंजाब में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ जंगला बस सर्विस पर 70 अरब लगाने के बजाय आवाम को बिजली फराहम करते। इमरान खान ने लोधरा में जलसे से खिताब में कहा कि बरसरे इक़्तिदार आकर 3 माह के अंदर बल्दियाती निजाम लाएंगे। नए पाकिस्तान में थाने पटवारी की सियासत नहीं होगी और कोई जालिम कमजोर पर जुल्म नहीं कर सकेगा। 11 मई को जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, उसके 3 महीने के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे और हम सारा इक़्तिदार नीचे बल्दियात में पहुंचा देंगे। नए पाकिस्तान में गांव के लोग मिलके अपने थानेदार को मुंतखब करेंगे। इमरान खान ने रिहाड़ी में भी जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने फिर नवाज शरीफ पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी का पैसा वापस नहीं ला सकते क्योंकि उनका अपना पैसा बाहर है। क्या नवाज शरीफ आसिफ जरदारी का पैसा वापस ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता? क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि अपना पैसा बाहर पड़ा है। इमरान खान का कहना था कि 11 मई को 2 सगे और एक सौतेले भाई से आवाम को आजाद कराऊंगा। खवातीन घरों से खामोश इनकलाब लेकर निकले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस भी हो रहे हैं और इनमें पार्टी तराने भी गूंज रहे हैं, और जब पार्टी तराने गूंजें तो नौजवानों का झूमना एक लाजमी अमर है। आप भी देखिए। है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम, है मुजाहिदे वतन, है तेरे साथ हम। तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में पार्टी के तराने खूब गूंज रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों का जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा है। पाकपतन और लोधरा में इमरान खान की तकरीर के दौरान पार्टी तरानों ने माहौल को और भी गर्मा दिया। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। जलसे में मशहूर फोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी की आवाज में तराना चला। जिसके साथ ही हर तरफ नौजवानों की भी आवाज गूंजने लगी। तहरीक इंसाफ की तब्दीली के नारे को हर जगह पजीराई मिल रही है। इस नारे पर जलसे के शुरका झूम उठते हैं। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, साफ चली शफात चली, और कौम को ये उम्मीद दिलाते हैं कि तब्दीली आकर रहेगी। जलसों में पार्टी परचमों की भी खूब बहार दिखाई देती है। नया पाकिस्तान मुबारक और पाकिस्तान जिंदाबाद। हम घर से निकले हैं, जवां है जोश भरा और खून रवा, तब्दीली हमसे, तब्दीली हमसे। जैसा कि हमने आपको बताया कि तनकीद के बगैर इंतखाबी मुहिम अधूरी है। मुस्लिम लीग कायदे आज़म के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ ने सूबे को 500 अरब का मकरूज बना दिया है। गुजरात के हल्का NA 105 में अक़लियती बिरादरी के इज्तिमा से खिताब करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि अक़लियतियों के लिए दोहरा वोट, तालीमी इदारों की वापसी, गिरजाघरों की मरम्मत मुस्लिम लीग काफ के अक़लियतों के लिए तारीखी कारनामे हैं। शहबाज शरीफ दौर में जोसेफ कॉलोनी जैसे वाक़यात पेश आए और जो इमदादी चेक दिए गए वो भी कैश नहीं हुए। उन्होंने आवाम से अपील की कि खुशहाली का दौर लाने के लिए साइकिल पर मोहर लगाएं। परवेज इलाही का यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ ने जंगला बस के लिए तालीम और सेहत के शोबों के फंड्स भी इस मंसूबे पर लगा दिए।
ادھر MQM کے رہنما رضا ہارون نے ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ جمہوری روایات پر یقین رکھتی ہے، اس لیے الیکشنز میں حصہ ضرور لے گی۔ انہوں نے بات کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور کہا کہ اگر وہ آزاد ہے تو دہشت گردی کے خلاف کیا کر رہا ہے۔ MQM جمہوری نظام اور جمہوری نظام کے تسلسل پر یقین رکھتی ہے اور الیکشنز پر یقین رکھتی ہے۔ ہم الیکشنز میں کانٹیسٹ کریں گے، یہ بالکل ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب باقی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو آزادی سے جلسے جلوس ڈور ٹو ڈور الیکشن کیمپین کی اجازت ہو اور وہاں MQM کو اجازت نہ ہو تو یہ کیسا مقابلہ ہوگا؟ اس مقابلے کو آپ فری اینڈ فیئر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر تمام عمل، الیکشن پروسیس، الیکشن کیمپیننگ اور الیکشن ریزلٹس، یہ تینوں چیزیں مشکوک ہو جائیں گی۔ اور جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن کہتے ہیں کہ ماضی کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک کے اندر دہشت گردی، انتہا پسندی اور مہنگائی کی ذمہ دار ہیں۔ مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سید منور حسن نے کہا کہ پرویز مشرف کی گرفتاری مکافات عمل ہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر ملک کو امریکہ اور IMF کا غلام بنا دیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پرویز مشرف کو فارم ہاؤس کے بجائے جیل بھیجنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کے نفاذ سے ہی ملک میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ آئے دن کے دھماکوں سے قوم الیکشن کے متعلق بے یقینی کا شکار ہے، اس لیے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر قوم کو شفاف اور بروقت انتخابات کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ اور پاکستان علماء کونسل نے ووٹ دینے کو تمام قوم کے لیے شرعی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک فتویٰ بھی جاری کیا گیا ہے۔ رپورٹ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے شکیل احمد کی۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام قومی یکجہتی کانفرنس میں ووٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں 40 صفحات پر مشتمل فتویٰ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان اور پاکستانی پر یہ لازم ہے کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں اپنے ووٹ کا صحیح اور جائز استعمال کرے۔ علماء نے اپنے فتوے میں خواتین کے ووٹ ڈالنے کے حق کا بھی بھرپور دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر عورتوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا تو 50% سے زیادہ آبادی اپنے بنیادی حق سے محروم ہو جائے گی۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ نہ دینا اور اس کو ضائع کر دینا گناہ اور ملی اور دینی جرم ہے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ ہم انہی چور لٹیروں کو اسمبلیوں میں جانے دیں اور اپنا ووٹ جو ہے جیب میں رکھ کر بیٹھے رہے۔ ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ جب اچھے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بروں کا راستہ رکے گا۔ کانفرنس میں شریک مذہبی رہنماؤں نے ووٹ کو شہادت کے درجے کے مساوی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہادت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور اس پر کوئی معاوضہ لینا حرام ہے۔ اعلامیے میں ملک بھر کے علماء پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نماز جمعہ کے خطبات میں ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ سارا نظام جھوٹی شہادت کے بل سے تباہ اور برباد اور درم برم ہے، اس لیے اہمیت بہت دے گی کہ اس کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ جھوٹی شہادت سے تم دنیا کو تباہ برباد کر دو گے۔ کانفرنس میں 28 دینی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور اقلیتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کیمرہ مین انجم فاطمی اور شاہین گردیزی کے ساتھ شکیل احمد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ تو پاکستان علماء کونسل نے ووٹ استعمال کرنے کا جو حق ہے اس کو مرد و خواتین کے لیے یکساں طور پر لازمی قرار دیا ہے اور خواتین نے خصوصاً اس فتوے کو انتہائی خوشائند قرار دیا ہے۔ آپ بھی دیکھیے۔ اس فیصلے کے بعد امید ہے کہ 11 مئی کو خواتین زیادہ سے زیادہ آئیں گی اور ووٹ کاسٹ کریں گی، کیونکہ پاکستان میں مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ خواتین کو بھی جو ہے وہ آگے آنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے ووٹ ڈالنا چاہیے کیونکہ ان کا بنیادی حق ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خواتین کو تو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کرے کہ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے امید ہے اور میرا خیال ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ووٹ پر کرے گی۔ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ہر چیز میں، ہر سیکٹر میں آگے بڑھنا چاہیے، ووٹ بھی دینا چاہیے، گھروں سے نکلنا چاہیے تاکہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور اچھے لیڈر کو منتخب کریں۔ الیکشن کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ کو واپس لے چلتے ہیں اقرا شہزاد اور عائشہ ذوالفقار کے پاس۔ بہت شکریہ جواد احمد صدیقی کی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے صدر مملکت کے خلاف الزام تراشی بند نہ ہونے پر الیکشن کمیشن اور عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آصف زرداری کو بھی جواب کے لیے سیاسی سرگرمیوں کا حق دیا جائے۔ لاہور سے لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے اجلاس نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف مسلم لیگ نون کی الزام تراشی کی مذمت کی اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے۔ ان کے خلاف جو بھی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو ہرزہ گوئی کی جا رہی ہے،
اس کو فوری فلفور بند کر دینا چاہیے یا پھر انہیں اجازت دیں کہ وہ سیاست میں حصہ لیں تاکہ وہ اس کا جواب بھی دے سکیں۔ سردار لطیف کھوسہ اور سمینا خالد گرکی کی زیر صدارت اجلاس میں امیدواروں نے شکایت کی کہ ان کے مخالف کھلے عام اسلحہ کی نمائش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی اور مسلم لیگ قائد اعظم کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں۔ ان کے امیدواروں پر حملے ہو رہے ہیں جبکہ چند جماعتوں کو آزادانہ ماحول حاصل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے اور 3 جماعتوں کے خلاف خصوصی طور پر جو ہے ٹارگٹنگ جو ہو رہی ہے، دہشت گردی جو ہو رہی ہے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے فوری طور پر پنجاب میں سیکٹری ایجوکیشن سکولز کے فوری تبادلے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے انتخابی جلسوں کا سلسلہ تیز کرنے اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر بلاول بھٹو کے انتخابی اجتماع سے خطاب کا بھی اعلان کیا۔ کیمرامین سہیل دانش کے ساتھ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔ خبر کی دنیا میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے سرخ پانڈا۔ اہم ترین خبر آپ کو دیں، کراچی اور حیدرآباد میں سیاسی جماعت کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگز اور الیکشن مہم کے دوران تخریب کاری کے لیے کالعدم تنظیم کے 31 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان دہشت گردوں کے کوائف جمع کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم سے۔ بابر، کیا کہتی ہے پولیس اس بارے میں مزید؟ جی دیکھیے، یہ مختلف فون کال کی مدد سے ڈیٹا جمع کیا گیا ہے۔ 31 ملزمان ہیں جن کا تعلق کالعدم لشکر جنگی سے بتایا جا رہا ہے۔ تفتیشی ادارے کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ملزمان کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کیمپین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کی ٹارگٹ حیدرآباد میں ہوئی ہے، اس میں بھی ان کا کہنا ہے کہ یہی ملزمان ملوث ہیں۔ ان ملزمان کے پاس سکھر میں اور اندرون سندھ مختلف علاقوں میں روپوشی کی جگہیں موجود ہیں۔ تفتیشی حکام نے تمام قواعد جمع کرنے کے بعد سی آئی ڈی اور تمام متعلقہ حکام کو ان کی رپورٹ ارسال کر دی ہے۔ جی بابر سلیم، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے آپ کا۔ یہاں پہ ایک اور اہم خبر رکھتے ہیں آپ کو کراچی سے۔ نصرت بھٹو کالونی میں دھماکہ ہوا ہے، 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کراچی میں نصرت بھٹو کا علاقہ ہے جہاں پر دھماکے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نصرت بھٹو کالونی ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے، 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، انتخابات میں فوج صوبوں کی مشاورت سے تعینات کی جائے گی۔ نگران حکومتوں کو انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 11 سے 13 مئی تک لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل بڑائچ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 6 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم نے کی، جس میں سیکریٹری دفاع داخلہ، چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز، آئی جیز، ڈی جی رینجرز، آئی جی ایف سی سمیت وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے تمام شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انتخابات کے انعقاد کی راہ میں کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آنے دی جائے گی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ قوم خدشات کو ذہن سے نکال دے، 16 روز تک منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ کہ آج یہ سب لوگ اس عزم کے ساتھ اٹھے کہ اس عظیم ملک کی، اس عظیم قوم کی جو امیدیں ہیں ایک صاف شفاف اور پرامن انتخابات کرانے کی، اس سلسلے میں کسی بھی رکاوٹ کو راستے میں آڑے نہیں آنے دیں گے۔ اجلاس میں چاروں صوبوں نے اپنا سیکیورٹی پلان الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا اور کمیشن کو اپنی ضروریات سے آگاہ کیا۔ سیکریٹری دفاع نے الیکشن کمیشن کو یقین دہانی کرائی کہ انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے فوج بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اجلاس میں آئندہ عام انتخابات میں حساس اور حساس ترین پولنگ اسٹیشنوں پر فوج کی تعیناتی کا معاملہ صوبوں پر چھوڑ دیا گیا۔ فل کمٹمنٹ ہے آرمی کی تمام صوبائی حکومتوں سے اور اس قوم کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اپنا پورا کردار ادا کرے گی ملک میں صاف شفاف انتخابات کرانے کی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ نگران حکومتیں ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ 3 ہفتوں تک ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے تاکہ انتخابی عمل متاثر نہ ہو۔ وزارت خزانہ اس سلسلے میں فنڈز جاری کرے گی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ فاٹا کی تمام ایجنسیوں اور بلوچستان کے تمام اضلاع میں انتخابات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے آئی ڈی پیز کے لیے بھی پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن حکام نے دنیا نیوز کو بتایا کہ جمعے کو ملک بھر کی
हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की यकीन दहानी और इलेक्शन कमीशन के अज़्म के बाद इंतखाबात के इनकाद के उफ़ पर छाए खतरे के बादल छटते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन कराची में ताहाल रिवायती इंतखाबी सरगर्मियां देखने में नहीं आ रही। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, ये बता रही हैं शाजिया अजीज। शहर कायद के बाजारों और चौराहों पर इंतखाबी उम्मीदवारों के पोस्टर्स और बैनर्स तो दिखाई देते हैं, ताहम रिवायती गर्मा गर्मी देखने में नहीं आ रही, जो आमतौर पर शहर में इलेक्शन मुहिम के आखिरी दिनों में नजर आती है। शहरियों का कहना है कि सिक्योरिटी मसाइल ने इंतखाबी मुहिम को बहुत कठिन बना दिया है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बायस जारी इंतखाबी सरगर्मियों पर खौफ और बेयकीनी के सियाह बादल छाए हुए हैं। पूरे शहर में जो पूरा एक कैंपेन चल रही होती है और सारी चीज़ें, जो शहर के हालात हैं, इतना इनसिक्योरिटी किसी को फील हो रही होती है, तो उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। अब टेलीविज़न ऐसा आम हो गया है कि बहुत से लोग बजाय इसके जलसे जुलूस बाहर करें और मैदान में जाएं और रिस्क लें, वो अब बहुत सी जगह टेलीविजन पर अपने एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सन 2008 के आम इंतखाबात की निस्बत सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम इस मरतबा कदरे मोहतात नजर आ रही है। गहमा गहमी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है जलसे जुलूस की, वरना पहले कितने बड़े बड़े स्पीकर्स वगैरह लगाते थे, लेकिन अब बिल्कुल ही डाउन हो गया। 2008 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर जो कैंपेन देखने में आ रही थी, जितने लोग कैंपेन चलाते थे वो सिर्फ अब ये सोचते हैं कि कहीं अगर हम जाते हैं तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। शहरियों का कहना है कि अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, इसी वजह से कौमी और सियासी जमातें खतरात के बायस बड़े बड़े जलसे मुनक्किद करने से गुरेज कर रही हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम दहशतगर्दी के बायस महदूद होकर रह गई हैं, ताहम माजी जैसी गहमा गहमी अब कहीं नजर नहीं आती। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ शाजिया अजीज, दुनिया न्यूज, कराची। अभी एक ब्रेक और उससे पहले न्यूज अपडेट्स। नवाज शरीफ ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ कौमी मुजरिम हैं, जो किया है आज भुगत रहे हैं। बरसर इख्तियार आकर करप्शन से पाक हुकूमत कायम की जाएगी। इमरान खान कहते हैं 11 मई को 2 सगे और 1 सुतेले भाई से अवाम को आजाद कराएंगे। बरसर इख्तियार आकर थाने और पटवारी की सियासत खत्म करने का ऐलान। और टूर ऑफ टर्की साइकिल रेस का 5वां मरहला भी जर्मनी के आंद्रे ग्रेपल ने जीत लिया। ये खबर हमने आपके लिए ब्रेक की थी। कराची के इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी में धमाका हुआ है। अब आपको मजीद बताएंगे ये धमाका सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में हुआ है। 5 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ कराची रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। रेहान, क्या कहती है पुलिस वाकई के बारे में मजीद? देखिए, जो एसएसपी सेंटर है आमिर फारूक, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि धमाका गाड़ी में हुआ है जिसमें सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। और पुलिस हुकाम ने यह भी बताया कि करीब में वाकई एक सियासी जमा का दफ्तर भी है, वहाँ दफ्तर खुला हुआ था। अभी पुलिस इस बात की तस्दीक नहीं कर रही कि आया उसको निशाना बनाया गया था, नहीं, लेकिन पुलिस ने इस बात की तस्दीक जरूर कर दी कि धमाका एक गाड़ी में हुआ है। 5 से 5 अफराद भी जख्मी है, लेकिन जो ऐनी शाहिद ने जो वहाँ खड़े हुए मौके पर, जो उन्होंने मैं दुनिया को बताया कि जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका ये कहना है जख्मियों को एम्बुलेंसों में डाल रहे हैं। उसके बाद अंदाजा अस्पताल पहुंचे नहीं तो पता चला कितने जख्मी पहुंचे, लेकिन इब्तदाई तौर पर 5 जख्मी अस्पताल पहुंच चुके हैं। जी रेहान, यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है? जख्मियों को मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर दिया गया यहाँ से, ये काम जारी है अभी? देखिए तारिक, कराची में अभी कोई किस्म का नाखुशगवार वाक़या होता है तो लोग अपनी मदद आपके जाए रक्षा, टैक्सी, प्राइवेट गाड़ियों में बचाते हैं। यहाँ भी ऐसा किया गया है कि मुख्तलिफ लोग रक्षा, टैक्सी, जो करीब लोग खड़े थे उन्होंने जख्मियों को बचाया। रेस्क्यू टीमें पहुंच गई, एम्बुलेंसों के जरिए मुंतकिल किया। लेकिन पहले मरहले में जो लोग हैं वो प्राइवेट गाड़ियों और जो दीगर जो ट्रांसपोर्ट थी उसमें अस्पताल पहुंचना शुरू हुए हैं। पुलिस हुकाम ने तस्दीक कर दी है कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी जो कलंदरिया चौक है उसके दरमियान ये धमाका हुआ है और एक गाड़ी में हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए आपका। कराची की ही बात करते हैं, जिसके इलाके साइट और में जिनान रोड के करीब सीआईडी पुलिस ने छापा मार कर कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्दों समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद कर लिए। बनारस के करीब रेंजर्स ने टारगेटेड ऑपरेशन करके 12 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर 44 अक़साम के छोटे बड़े हथियार बरामद कर लिए। बिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची साइट के इलाके गनी चौरंगी और अहमद जिना रोड के करीब सीआईडी पुलिस ने छापा मारकर कलदम तहरीके तालिबान के 4 कारिंदों समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कलदम तहरीके तालिबान के गिरफ्तार मुल्जिमों का ताल्लुक नईम बुखारी ग्रुप से है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 50 किलो धमाका खेज मवाद, 9 टीटी पिस्तौल, 9 दस्ती बम
और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गईं। 2013 में जितने भी धमाके हुए हैं उनमें से लेटेस्ट 2 धमाके छोड़ के बाकी जितने मेजर ब्लास्ट हुए हैं सबको पकड़ लिया। दूसरी जानिब रेंजर्स ने बनारस के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा किया और घर घर तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान 12 मुल्जिमान को हिरासत में लेकर 8 राइफल, 5 रिपीटर, 28 पिस्तौल, मुतादिद गोलियां और कारतूस बरामद कर लिए। और लियारी कराची में रेंजर्स की फायरिंग से 4 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ इलाका मकीनों ने ICI ब्रिज पर एहतजाज किया है। पुलिस खामोश तमाशाई बनाई रही। इस तमाम एहतजाज के दौरान रिपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर आलम। ICI पुल पर एहतजाज के बायस शहर कायद की मसरूफ और अहम तरीन शाहराह माड़ीपुर रोड दूसरे रोज भी बंद रही। लियारी में रेंजर्स ऑपरेशन के दौरान फायरिंग में 4 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ इलाका मकीनों ने बुध के रोज एहतजाज शुरू किया, जो जुमेरात को भी जारी रहा। एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर अब्दुल कादिर पटेल समेत दीगर रहनुमा शरीक रहे। जुडिशियल इंक्वायरी करा दें ताकि मामला क्लियर हो जाए, किसने मारे, क्यों मारे, और गरीब लोग जो मरे हैं उनका मुआवजा दे दिया जाए थोड़ा बहुत। मैं आसिफ अली ज़रदारी से गुजारिश और चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूं कि हमारे नौजवान जो शहीद हुआ है इसको दोबारा इंक्वायरी किया जाए और इसको मुआवजा दिया जाए। एहतजाज के बायस कराची पोर्ट से अंदरूनी मुल्क सप्लाई बंद है, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी है। पुलिस ने मुजाहिरीन से न तो मुज़ाकरात किए और न ही कोई ऐसा कदम उठाया जिससे अहम तरीन शाहराह खोलने में मदद मिल सके। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं मुशर्रफ की मुश्किल। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने बेनजीर कत्ल केस में इश्तहारी मुलजिम परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। FIA की मुश्तरका टीम ने साबिक सदर को गिरफ्तार करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है। रावलपिंडी से सगीर अहमद की रिपोर्ट। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बेनजीर कत्ल केस में फाजल अदालत परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी मुलजम करार दे चुकी है और हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने भी मुलजम की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। तफ्तीश के लिए मुलजम की गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए, जबकि परवेज मुशर्रफ की वकील अफशां आदल ने उन्हें FIA के हवाले करने की मुखालफत करते हुए कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। डिसाइड करेंगे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। अब उनको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद कि क्या फिजिकल रिमांड उनका रिक्वायर्ड है या कि जुडिशियल रिमांड लेना। व्यू ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट टू द अक्यूज, ये तफ्तीश जो है उसको वहाँ ही शामिल तफ्तीश किया जाए। 5 सालों के दौरान बेनजीर कत्ल केस में सिर्फ 24 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा सके। परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल रोक दिया था। FIA का कहना है कि परवेज मुशर्रफ से तफ्तीश उनके फार्म हाउस सब जेल में होगी, जबकि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने एक सवालनामा भी तैयार किया है। इन द लाइट ऑफ एविडेंस, जो कि ओवरवेलमिंग एविडेंस सफा मिसल पे मौजूद है, जिसमें बहुत सारे 161 के गवाहान इस्तगासा के बयानात हैं और दस्तावेजी शहादत भी मौजूद है, वो तमाम शहादत जो है वो मुलजम से कन्फ्रंट कराई जाएगी हस्बे ज़ाब्ता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम के 4 मेंबरान के FIA से दीगर महकमों में तबादलों की वजह से तहकीकात का अमल मुतासर हो सकता है। इमरान खान की जानिब से मियां नवाज शरीफ को मनाजरे के चैलेंज के बाद NA 119 लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद मदनी ने भी हमजा शहबाज को मनाजरे का चैलेंज कर दिया। दुनिया फोरम में इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद मदनी ने कहा कि NA 119 अब मुस्लिम लीग नून का सियासी किला नहीं रहेगा। इस हलके समेत मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इजारादारी खत्म होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों की नूरा कुश्ती की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा है। अब इन दोनों जमातों की बारियों का दौर हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। मज़ीद खबरें भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, पाकिस्तानियों कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। पैसों के इवज़ नहीं बेचना ईमान को, याद रखो सारे इस बल्ले के मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा।
नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। बल्ले पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान की तकदीर बदलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 6 माह मुफ्त तब्दीली की गारंटी के साथ जदीद जापानी टेक्नोलॉजी चले लंबे अरसे तक। बैटरी हो तो सिर्फ ओसाका। और उस्ताद जी घर के लिए कौन सी बैटरी? घर के लिए भी सिर्फ ओसाका। ख्वाबों की तामीर को चाहिए मजबूत साथी, इरादों को मिले पक्की बुनियाद और घर को बेमिसाल मजबूती। लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। वेलकम बैक और खबरें खेल के मैदान से। कराची में जारी फास्ट बॉलिंग कैंप के छठे रोज तमाम फास्ट बॉलर्स का फिटनेस टेस्ट लिया गया, जबकि साबिक कप्तान सईद अनवर ने खुसूसी तौर पर फास्ट बॉलर्स को लेक्चर देने के साथ दर्स भी दिया। साबिक कप्तान ने वादा किया है कि वो कौमी बल्लेबाजों को बैटिंग टिप्स भी देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी पीसीबी फास्ट बॉलिंग कैंप के छठे रोज तमाम बॉलर्स के फिटनेस टेस्ट लिए गए। जराये के मुताबिक कोच डेव वाटमोर ने तमाम बॉलर खुसूसन जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, असद अली, हम्माद आजम और सोहेल तनवीर की फिटनेस का बगौर जायजा लिया। छठे रोज कैंप की खास बात साबिक कप्तान सईद अनवर की जुनैद जमशेद के साथ आमद रही। सईद अनवर ने मुख्तसर लेक्चर के साथ बॉलर्स को दर्स भी दिया। मीडिया से गुफ्तगू में जुनैद खान और हम्माद आजम ने कहा कि वसीम अकरम से हासिल करदा कोचिंग बैनुल अक़वामी मैचेस में बहुत काम आएगी। मेरे ख्याल में बहुत कुछ है जो हमने वसीम भाई से अभी सीखे भी है, और अभी वसीम भाई ने वादा भी किया है कि वो पाकिस्तानी कैंप में भी 2-3 दिन के लिए आएंगे। तो इंशाल्लाह जो यहाँ पे हमने सीखा है वो वहाँ पे आके जाके फॉलो करें। कैंप का काफ़ी फायदा है। वसीम अकरम एक लेजेंड बॉलर है, उनसे हम लोग काफ़ी अच्छा काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। लड़कों की जो खामियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स वगैरह उन्होंने की हैं, अब उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। 10 दिन का कैंप है तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। पीसीबी जराये के मुताबिक कोच डेव वाटमोर बॉलर्स की फिटनेस का जायजा लेने के बाद लाहौर में बैट्समैनों की फिटनेस भी जांचेंगे, जिसके बाद कप्तान और सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत से चैंपियंस ट्रॉफी की हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ अब्दुल गफ्फार, दुनिया न्यूज, कराची। और अब कारोबार की दुनिया। This segment is brought to you by Q Mobile. Q Mobile E760. Make a statement. IMF को कर्ज वापसी में वक्फे से ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी का सिलसिला भी रुक गया है। ज़खायर 24 करोड़ 80 लाख डॉलर बढ़ गए। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक 18 अप्रैल को खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते पर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 93 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। इस दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर 17 करोड़ डॉलर इजाफे से 6 अरब 81 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी 7 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए हैं। उधर आलमी मार्केट में निर्खों में इजाफे के बाद मुकामी सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत 1400 रुपए बढ़ गई है और इसके बाद सोने की नई कीमत 56,700 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1200 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 48,600 रुपए हो गई है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में होने वाले धमाके में जाम भाग होने वालों की तादाद 4 तक जा पहुंची है। 15 अफराद
जख्मी हुए हैं। धमाके की जगह के करीब बताया जा रहा है सियासी जमात का दफ्तर भी। इस वक्त आप इस जगह के मनाजिर भी देख रहे हैं, धमाके से जो तबाही हुई है इस तबाही को भी आप देख सकते हैं। हमारी नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। किरण, 4 अफराद जाँ बाक हो गए हैं और इस वक्त धमाके की जगह पर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी है जो सखी हसन, नॉर्थ नाजिबाद सखी हसन से ऊपर जाके एक नुसरत भुट्टो कॉलोनी आती है, वहां पर ये धमाका हुआ है। और इस वक्त जो है इस धमाके की जद में आकर 4 अफराद जो है वो जाबाक हुए, जबकि 15 के करीब लोग जो है वो जख्मी है, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया है। इस अगर लोकेशन की मैं बात करूँ तो इस वक्त यहाँ पर जहाँ पे धमाका हुआ है वहाँ पे MKM का जो दफ्तर है, इंतखाबी दफ्तर, वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा सामने ही उसके जमात इस्लामी का दफ्तर भी है जो इस इलाके में है। और काफी ज्यादा ये रश वाला इलाका है जहाँ पर लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं, मसरूफ इलाका है, दुकानें हैं यहाँ पर। और जब ये धमाका हुआ तो यहाँ की दुकानों के जितने भी शीशे थे वो हम देख रहे हैं, तमाम शीशे जो है वो टूट चुके हैं। एक गाड़ी भी इसमें तबाह हुई है और कहा ये जा रहा है कि अभी नहीं कह सकते कि ये धमाका जो है वो गाड़ी में हुआ है या खुद कुछ बम्बार ने किया है। इस वक्त मैं जिस जगह पे तारिक खड़ी हूँ वहाँ पर भी इंसानी आज़ा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस और रेंजर्स भारी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुकी है और जाए वकुआ का जो है वो वहाँ से तहकीकात जो है जो तबाह होने वाली एक हमें सुजुकी महरान कार नजर आ रही है, इसके नजदीक कंक्रीट के बड़े बड़े पीसेस हैं। क्या ऐसा लगता है कि सीमेंट ब्लॉक में छुपाया गया था? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर इसको तारिक अभी क्योंकि इब्तिदाई तौर पर ये सब कहना जो है वो नामुमकिन नहीं होगा कि ये कैसे धमाका जो है किया गया, आया कि खुद कुछ बम्बार था या फिर सीमेंट ब्लॉक के अंदर रखा गया था, क्योंकि जो तबाही यहाँ पर हुई है उससे पता चल रहा है कि काफी बड़ी मिकदार में जो है धमाका खेज मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो मुश्तिल हैं, जमा भी हुए में है। पुलिस और रेंजर्स ने उन्हें स्पॉट से दूर भी किया है ताकि चेकिंग कर ली जाए, सर्चिंग कर ली जाए कि यहाँ पर कोई और किसी किस्म का धमाका खेज मवाद ना हो। काफी ज्यादा अफरा तफरी इस इलाके में मची हुई है इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं। जी किरण, कराची एक बड़ा शहर और फिर यहाँ ये शहर के जरा दूर इलाका है शहर में। मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। जी किरण, जहाँ पर आप हैं यकीनन वहां पर शोर भी होगा इस वक्त। यहाँ से ये बताएं, तमाम जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है? तो यहाँ पर तमाम जख्मियों को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और जो उनके लोग हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं और जो लोग इसमें जाबाक हुए हैं धमाके में, उनके लवाकिन पर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी अब्बासी शहीद जो जख्मी थे उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है जख्मी कोई भी मौजूद नहीं है, तमाम तर को मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद है जो जाए वकुआ का जो है दौरा कर रही है, वहाँ से तहकीकात के लिए उन्होंने तहकीकात शुरू कर दिया है और यहाँ पर लोग। किरण, ये बताइए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी को अल्ताफ हुसैन ने हिदायत की थी तमाम इंतखाबी दफातर बंद कर दें। जब ये धमाका हुआ है MQM का इंतखाबी दफ्तर यहाँ पर खुला हुआ था? बिल्कुल तारिक, जैसा कि कल ही MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने अवाम से भी अपील की थी कि मुत्तहिदा की जितने भी इंतखाबी अमल है उसमें हिस्सा बने और एक बार फिर से MQM ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज कर दिया था। मुख्तलिफ जगहों पर MQM के इंतखाबी दफातर का जो है वो भी जो इफ्तिताह किया जा रहा था। इस वक्त भी नॉर्थ नाजिबाद में भी एक दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा था जिसके बाद ये धमाका हुआ है नुसरत भुट्टो कॉलोनी में। यहाँ पर भी फाल कर दी गई थी तमाम चीजें और यहाँ पे ना सिर्फ MQM का दफ्तर है, बिल्कुल इसके सामने जो है वो जमात इस्लामी का भी इंतखाबी दफ्तर है जहाँ पर हलचल जो तमाम तर मुहिम जारी थी इनकी। और इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी तादाद में दुकानें भी मौजूद है। यहाँ पर लोगों की रश बहुत ज्यादा रहता है, शीशे वगैरह भी बहुत ज्यादा टूट गए। यहाँ पर लोग काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जो हमसे बात हुई है परेशान है कि काफी ज्यादा उनको जोरदार धमाके की आवाज आई जिसके बाद जो है इंसानी आज़ा जो है यहाँ पर फैले हुए थे और लोग जो थे वो जख्मी थे जिन्हें मुंतकिल किया गया। ताहम इस वक्त जो है कार्रवाई की जा रही है, तहकीकात जो है वो की जा रही है पुलिस की जानिब से कि आया ये धमाका किस तरह जो है हुआ है, आया कि ये किरण, अब तो पुलिस तफ्तीश के रुख से काम कर रही है। पीपल्स चौरंगी पे धमाका हुआ, उसके बाद ये एक और इंतखाबी दफ्तर के सामने धमाका, इंतजामात क्या किए गए थे पीपल्स चौरंगी वाले वाकये के बाद? उससे पहले भी फायरिंग के वाकयात में उम्मीदवारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, कारकुनों को निशाना बनाया गया। तो तारिक, अगर MQM के हवाले से हम बात करें तो MQM की अपनी सिक्योरिटी इन्होंने बहुत ज्यादा जो है सख्त कर दी थी। हमने देखा कि 90 के सामने भी बख्तरबंद गाड़ी जो है वो मौजूद रहती थी यहाँ
और जो इनके इंतखाबी दफातर हैं वहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई थी, लेकिन इस तरीके से जिस तरह तवातुर के साथ ये हमले हो रहे हैं उसके बाद जो है सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर लगता है कि पुलिस जो है सिक्योरिटी फराम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इवन तमाम तर थ्रेट्स जो है वो इनके सामने है, जो एमकेएम के रहनुमाओं ने काफी बार वजीर दाखिला जो निगरान वजीर दाखिला है उनके सामने भी रखी, निगरान वजीर आला के सामने भी रखी, एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन की सदर आसिफ अली जरदारी से भी बात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ, लेकिन वो सिक्योरिटी अगर होती तो यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात जो है वो रोनुमा ना होते। इस वक्त एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और जो हम देख रहे हैं इसमें एमकेएम के कारकुनान ही पुलिस के साथ जो है वो इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने में उनकी मदद कर रहे हैं। जी किरण, जब आप यहाँ पहुंची, आपकी बात हुई मुत्तहिदा के दफ्तर में भी बैठे लोगों से, जमात इस्लामी के दफ्तर में बैठे लोगों से, यानी शाहिदीन से, कुछ पता चला क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, और पुलिस का, इमदादी इदारों का रिस्पांस टाइम? बिल्कुल तारिक, जो यहाँ पर लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दुकान भी बड़ी तादाद में जो दुकानें हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर लोग उसमें मौजूद थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अचानक से बहुत जोरदार धमाका हुआ है जिसके बाद धुआं छा गया और उसके बाद जो है सिर्फ जख्मी लोग और जो इंसानी आज़ाद है वो नजर आए और एक रिक्शा और एक गाड़ी जो है इसमें तबाह हुई। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी नहीं कहा जा सकता कि ये धमाका जो है वो किस तरह हुआ है, क्योंकि उनकी भी वो भी बिल्कुल जो है उन्होंने अपने वो उनके सारे जहन जो है माऊफ हो गए थे कि क्या हुआ है। इस वजह से यहाँ पे लोग भी काफी ज्यादा जो है परेशान हैं, क्योंकि ये रिहायशी इलाका भी है जहाँ पर काफी ज्यादा जो है लोग होते हैं इस वक्त मौजूद। जी, और किरण, कराची के दो बारे में मुसलसल खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि कराची में इंतखाबी मुहिम में इलेक्शन डे पर उससे पहले बदअमनी के खदशात हैं। आप लोगों को कराची में जब आप मूव कर रहे हैं कवरेज के लिए, इलेक्शन ऑफिसेज में जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सड़कों पर सूरत हाल बेहतर दिखाई देती है सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से? तारिक, अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं कि जो हमने ऑब्जर्व किया है, जिस तरीके के हालात कराची के इस वक्त हैं, उस लिहाज से अगर सिक्योरिटी की हम बात की जाए तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस हमें जरूर नजर आती है और बड़ी तादाद में नजर आती है जब कोई रोनुमा हो जाता है वाकया, लेकिन उससे कबल अगर हम देखें तो पुलिस की कारकर्दगी, रेंजर्स की कारकर्दगी कोई ऐसी हमें नजर नहीं आ रही, वरना ये वाकयात रोनुमा नहीं होते। कराची को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि इससे फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी फराम की जाए यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कराची में इंतखाबात जो है बड़े हसास हो जाएंगे और लोगों का निकलना जो है वो महाल हो जाएगा। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा डरे में हैं, बहुत ज्यादा तशवीश का शिकार है, ना सिर्फ वोटर्स बल्कि बहुत सारे लोग जिनके कॉलोनीज में ये दफातर बने हुए हैं, इलेक्शन दफातर बने हुए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो सब परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है कराची में और हुकूमत की तरफ से इकदाम क्या किए जा रहे हैं कि ये ऐसे वाकयात को नहीं रोका जा रहा। और किरण, इस इलाके पे शक का इजहार इसलिए भी किया जा सकता है कि कराची में कलअदम तहरीक तालिबान की, लश्कर झंगवी की जो बात होती है, यहां से कुछ अंदर जाकर उनकी पेनिट्रेशन की भी बात हो रही है, उनकी मौजूदगी की बात हो रही है। इस जगह से लेफ्ट और राइट वो इलाके हैं कि जहां पर मुसलसल कशीदगी के वाकयात हमने देखे हैं, लिसानी लड़ाइयां भी हमने देखी हैं। इस जगह पर तो इंतजाम और ज्यादा होना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तारिक, इन जगहों पे जो जगहें हसास करार दी चुकी है और मेरे ख्याल से इस वक्त तो पूरे कराची को हसास करार दे देना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी किसी किस्म का कोई वाकया रोनुमा हो सकता है। जिस किस्म के दहशतगर्दाना जो धमकियां हैं वो मौसूल हुई हैं और इसके अलावा जो लोग पकड़े भी गए हैं जिन्होंने इस बात का एतराफ भी किया है, उसके अलावा भी अगर हम देखें हुकूमत की कारकर्दगी तो हमें सिफर नजर आती है। बाद में जो है CID की तरफ। किरण खान, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका। इसके साथ दुनिया न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज।